وہ کون سے دیش کا کنگ ہے جس کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ رولز رائس گاڑیاں ہیں؟ اور وہ کون سے دیش کی آرمی ہے جس میں ٹوٹل صرف 50 سولجرز ہی ہیں؟ آج ہم دنیا بھر کی کنٹریز کے ان ریکارڈز کے بارے میں جانیں گے جو ان کے علاوہ کوئی اور نہیں بنا پایا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں الفابیٹیکل آرڈر سے۔ دنیا بھر میں جتنی بھی افیم اسمگل ہو رہی ہے اس میں سے 80% افغانستان میں پیدا کی جاتی ہے۔ یہ نمبر یونائٹڈ نیشنز ڈرگز اینڈ کرائم یونٹ کی جانب سے دیا گیا ہے۔ جنگیں تو دنیا بھر میں ہوئی ہیں، لیکن البانیہ وہ ملک ہے جہاں سب سے زیادہ ملٹری بنکرز بنے ہیں۔ ان کی ٹوٹل تعداد 1,73,000 سے بھی زیادہ ہے، یعنی اگر اس کو اسکوائر کلومیٹر میں ڈیوائیڈ کیا جائے تو ہر ایک کلومیٹر میں 5.7 بنکرز بنے ہیں۔ الجیریا دنیا کی سب سے بڑی کنٹری ہے جس کی زمین کا لٹرلی 0% ایریا بھی پانی سے کورڈ نہیں ہے۔ دنیا میں سب سے کم سوئسائڈ ریٹ اینٹیگوا اینڈ بربودا میں ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یہاں ہر سال صرف 0.3 لوگ خودکشی کرتے ہیں، یعنی کئی سال ایسے بھی گزرتے ہیں جس میں یہاں ایک بھی شخص خودکشی نہیں کرتا۔ ارجنٹینا نے فٹ بال پلیئرز کی ایکسپورٹ میں اپنے پڑوسی برازیل کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ 2015 میں ارجنٹینا نے 2000 فٹ بال پلیئرز ایکسپورٹ کیے تھے۔ اس کے علاوہ ارجنٹینا میں بیف کھانا ایک ٹریڈیشن ہے۔ یہاں ہر شخص سالانہ حیرت انگیز طور پہ 55 کلو گرام بیف کھاتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ شارک اٹیکس آسٹریلیا میں ریکارڈ کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا میں سب سے زیادہ اور سب سے خطرناک جانور بھی آسٹریلیا میں ہی پائے جاتے ہیں۔ اگر آپ کو سکون کی جاب کرنی ہو تو آپ آسٹریا بھی جا سکتے ہیں، کیونکہ آسٹریا دنیا میں سب سے زیادہ پیڈ لیوز دینے والا ملک مانا جاتا ہے، جہاں ایک سال میں ایوریج 42 پیڈ لیوز ملتی ہیں۔ آذربائیجان میں سب سے زیادہ مڈ والکینوز پائے جاتے ہیں۔ دنیا میں قریب 1000 ایکٹیو مڈ والکینوز ہیں، جس میں سے 400 آذربائیجان میں موجود ہیں۔ یونائٹڈ نیشن کی پیس کیپنگ فورس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوٹرز بنگلہ دیش کے ہیں، قریب 6447، اور اس دیش کو لینڈ آف ریورز بھی کہا جاتا ہے کیونکہ پورے بنگلہ دیش میں ٹوٹل 700 ریورز بہتی ہیں۔ دنیا کی سب سے بڑی بیئر بنانے والی کمپنی بیلجیم میں موجود اینہائزر بوش اینڈ بیف کے نام سے جانی جاتی ہے۔ 2022 میں اس کی سالانہ آمدنی 57 بلین $US سے بھی زیادہ تھی۔ بھوٹان کی بات کی جائے تو یہاں کی 80% پاپولیشن فارمنگ کرتی ہے۔ نام تو ان کا برازیل نٹس ہے، لیکن اس کا سب سے بڑا پروڈیوسر بولیویا ہے۔ پر اسکوائر کلومیٹر کے حساب سے بوسنیا اینڈ ہرزیگووینا میں سب سے زیادہ لینڈ مائنز لگی ہیں، ہر اسکوائر کلومیٹر میں 152 لینڈ مائنز۔ بوٹسوانا ڈائمنڈز کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے۔ برازیل سب سے زیادہ فیفا ورلڈ کپس جیتنے والا ملک ہے، اور سب سے زیادہ کافی بھی برازیل میں ہی بنائی جاتی ہے، ہر سال قریب 3290 ٹن۔ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق برونائی کے سلطان کے پاس رولز رائس گاڑیوں کی سب سے بڑی کلیکشن موجود ہے، جن کی ٹوٹل کوانٹٹی 500 ہے۔ دنیا میں جتنی بھی رولز رائس بنائی گئی تھیں ان سب کا آدھا اسٹاک 1990 میں سلطان کی فیملی کے پاس ہی تھا۔ بلگیریا یورپین یونین کا سب سے غریب ملک ہے، لیکن روز آئل کی سب سے زیادہ پروڈکشن یہیں پر ہوتی ہے۔ برونڈی دنیا کی سب سے غریب ترین کنٹری ہے۔ یہاں ایوریج انسان سالانہ صرف $292 کماتا ہے۔ کمبوڈیا کی بات کی جائے تو یہاں ڈیفارسٹیشن کا ریٹ سب سے زیادہ ہے۔ 1969 سے لے کر 2007 تک کے سروے کے مطابق کمبوڈیا نے 25,000 اسکوائر کلومیٹر کے جنگلات کھو دیے ہیں۔ یہ جنگلات اسرائیل اور ایل سیلواڈور کے ایریا سے بھی زیادہ تھے۔ کینیڈا کی 56% پاپولیشن نے کم سے کم گریجویشن کر رکھی ہے۔ اسی وجہ سے کینیڈا کو دنیا کی سب سے ایجوکیٹڈ کنٹری کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ چلی کے پاس دنیا کے شدید ترین ارتھ کوئک کا ریکارڈ موجود ہے، جس میں رکٹر اسکیل کی ریڈنگ 9.5 تھی۔ ایک طرف چائنا دنیا میں سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ ایمیشن پیدا کرنے والا ملک ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ رینیویبل انرجی پیدا کرنے میں بھی سب سے اوپر آتا ہے۔ کولمبیا کوکین کی سب سے زیادہ پیداوار کرنے والا ملک ہے۔ 2015 میں یہاں 495 ٹن کی پیداوار ہوئی تھی۔ آج کے دور میں بھی کانگو کی 75% پاپولیشن کو روز کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اس کے ساتھ ہی ریپبلک کانگو دنیا میں سب سے کم الیکٹریسٹی استعمال کرنے والا ملک ہے۔ کروشیا کڈنی ٹرانسپلانٹس میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔
बेस बॉल वर्ल्ड कप के 25 गोल्ड मेडल्स अकेले क्यूबा के पास हैं। पैराग्लाइडिंग करने वाली सबसे बूढ़ी औरत साइप्रस से ताल्लुक रखती थी, जिसने 104 साल की उम्र में पैराग्लाइडिंग करके दुनिया को हैरान कर दिया। सबसे कम करप्शन वाली कंट्री होने का एजाज डेनमार्क के पास है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पूरी दुनिया में 11 करोड़ लैंड माइंस हैं, जबकि अकेले इजिप्ट में 2 करोड़ 30 लाख लैंड माइंस इंस्टॉल्ड हैं। चाइल्ड वर्कर्स की सबसे बड़ी तादाद एरिट्रिया में काम करती है। इथियोपिया में सबसे महंगा इंटरनेट बेचा जाता है, जहां एवरेज कनेक्शन की मंथली कॉस्ट हैरतअंगेज तौर पे 34,000 रुपयों के बराबर बनती है। पॉपुलेशन के हिसाब से कॉफी की खपत में फिनलैंड पहले नंबर पे आता है। यहाँ हर शख्स रोजाना 2.64 कॉफी कप्स पी जाता है। टूरिज्म का बेताज बादशाह और कोई नहीं बल्कि फ्रांस है। 2015 में 8 करोड़ 63 लाख विजिटर्स फ्रांस गए थे। पूरी दुनिया में पिज्जा खाया जाता है, लेकिन जॉर्जिया में इसकी जगह कचापूरी नामी डिश खाई जाती है, जो कि एक तरह की चीज ब्रेड है। जर्मनी ने विंटर ओलंपिक्स के सबसे ज्यादा मेडल्स जीते हैं। ग्रीस में ओलिव ऑयल इस्तेमाल करने का रेशो सबसे ज्यादा है। हैरत अंगेज तौर पे एक शख्स यहाँ हर साल 26 किलोग्राम ओलिव ऑयल यूज करता है। कार्डमम यानी इलायची की प्रोडक्शन में ग्वाटेमाला का पहला नंबर है। दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे ज्यादा एल्युमिनियम गिनी में बनाया जाता है। लड़कियों में सुसाइड का सबसे ज्यादा रेट गयाना में पाया जाता है। हेटी दुनिया की वो वाहिद कंट्री है जिसके पास सबसे कम फौजी सिपाही है, जिनकी तादाद सिर्फ 50 है। आइसलैंड के पास दुनिया में सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर्स हैं। यहाँ की 92% आबादी इंटरनेट से कनेक्टेड रहती है। मूवीज की प्रोडक्शन में इंडिया का पहला नंबर है। 2021 में यहाँ 2886 मूवीज बनाई गई थी। दुनिया में सबसे कम हाइट के लोग इंडोनेशिया में रहते हैं, 5 फुट 2 इंच के मर्द, जबकि लड़कियों की एवरेज हाइट 4 फुट 10 इंचेस है। कैपिटल सिटी बदलने में ईरान का पहला नंबर है। ईरान हिस्ट्री में 32 बार अपने कैपिटल बदल चुका है। टेररिस्ट हमलों की बात की जाए तो ये सबसे ज्यादा इराक में होते हैं। इजराइल में सोशल मीडिया सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इटली के पास सबसे ज्यादा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। जापान में एवरेज एज 84 इयर्स है, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। जॉर्डन में जमीन का लोएस्ट पॉइंट मौजूद है, जो सी लेवल से भी 428 मीटर्स नीचे है। दुनिया की सबसे महंगी करेंसी कुवैत के पास है। लैटविया में सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट है। टोटल आबादी का 99.9% हिस्सा पढ़ लिख सकता है। लेसोटो दुनिया का वो मुल्क है जहां 100% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्स से बनाई जाती है, जैसा कि विंड टर्बाइंस या फिर सोलर से। लीबिया में रोड्स बंदूक से ज्यादा खतरनाक हैं। कब कोई कहां से निकल आए किसी को भी मालूम नहीं होता। लिक्टेनस्टाइन दुनिया की पहली और आखिरी कंट्री है जिसको सिर्फ $70,000 पर नाइट के हिसाब से रेंट पे लिया जा सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा सालाना उजरत यानी वेज लग्जमबर्ग में ऑफर किया जाता है। एवरेज वर्कर $60,300 कमाता है। मलेशिया में दुनिया का सबसे बड़ा केव सिस्टम मौजूद है। मालदीव्स दुनिया की वो वाहिद कंट्री है जहां की जमीन का सबसे ऊंचा पॉइंट सी लेवल से सिर्फ 2 मीटर ऊपर है। मार्शल आइलैंड्स की 98.4% टेरिटोरी असल में पानी है, सिर्फ 1.6 एरिया जमीनी है। सबसे ज्यादा इस्लामिक कंट्री सऊदी अरब नहीं बल्कि मॉरिटेनिया है, जहां की 100% आबादी मुस्लिम्स हैं। काम के हिसाब से मेक्सिको सबसे मुश्किल कंट्री मानी जाती है, जहां एवरेज वर्कर को सालाना 2246 घंटे काम करना पड़ता है। दुनिया भर में लोग गांव छोड़कर शहरों का रुख करते हैं, लेकिन मोल्डोवा में सबसे ज्यादा रेशो शहरों को छोड़कर गांव जाने वालों का है। एरिया के हिसाब से मंगोलिया में सबसे कम लोग बसते हैं, सिर्फ 2 लोग 1 स्क्वायर किलोमीटर में। म्यांमार में दुनिया की सबसे बड़ी बुक मौजूद है, जिसमें 1460 पेजेस हैं और इसको पत्थर पे लिखा गया था। सबसे ज्यादा हिंदू पॉपुलेशन की परसेंटेज नेपाल में रहती है, टोटल 81.3%। नेदरलैंड सबसे ऊंचे कद के लोगों की वजह से मशहूर है, जहां मर्दों की एवरेज हाइट 6 फुट जबकि लड़कियां 5 फुट 7 इंचेस लंबी है। वो कौन सी कंट्री है जहां इंसानों से भी 10 गुना ज्यादा भेड़ बकरियां पाई जाती हैं? वो कोई और नहीं बल्कि न्यूजीलैंड है।
नाइजीरिया में सबसे ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं और इसी वजह से यहाँ की एवरेज एज भी दुनिया में सबसे कम है, सिर्फ 15 साल। नॉर्थ कोरिया दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ अब तक गुलाम बनाने पर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। नॉर्वे दुनिया की सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक, सबसे खुश और यहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी दुनिया में सबसे अच्छा है। पाकिस्तान वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसका एक भी प्राइम मिनिस्टर कभी भी अपनी फुल टर्म कंप्लीट नहीं कर पाया। दूसरी तरफ पनामा के पास सबसे ज्यादा रजिस्टर्ड शिप्स रखने का एजाज है, टोटल 6323। पापा न्यू गिनी में सबसे ज्यादा जबानें बोली जाती हैं, इनकी तादाद 850 तक भी रिकॉर्ड की जा चुकी है। सजाए मौत को खत्म करने में पोर्चुगल दुनिया का सबसे पहला मुल्क था जिसने ये काम ईयर 1884 में ही कर दिया था। कतर सालाना इनकम के हिसाब से नंबर 1 पे आता है, जहाँ की एवरेज सैलरी या इनकम $61,000 से भी ज्यादा है। और दूसरी तरफ रोमानिया की 96.4% पॉपुलेशन के पास अपने प्राइवेट खरीदे हुए घर हैं। रशिया के पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद हैं। रुवांडा वो वाहिद कंट्री है जहां खवातीन लेबर की सबसे ज्यादा परसेंटेज है, 100 में से 86 वर्कर्स खवातीन होती हैं। सैन मैरियो में हर शख्स के पास एक से ज्यादा मोटरसाइकिल्स हैं। दुनिया की सबसे अमीर फैमिली सऊदी अरेबिया की हाउस ऑफ सऊद है, जिसकी नेटवर्थ $1.4 ट्रिलियन है। सिंगापुर को मलेशिया से कनेक्ट करने वाला कॉजवे दुनिया की सबसे ज्यादा बिजीएस्ट इंटरनेशनल क्रॉसिंग मानी जाती है। और दूसरी तरफ सोमालिया को दुनिया की सबसे ज्यादा करप्ट कंट्रीज में शुमार किया जाता है। सबसे फास्ट इंटरनेट कनेक्शन तो कई कंट्रीज में आ चुका है, लेकिन साउथ कोरिया के एवरेज इंटरनेट कनेक्शन की स्पीड 26 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। स्पेन दुनिया में सबसे ज्यादा ओलिव्स प्रोड्यूस करने वाला मुल्क है, जो दुनिया की 30% खपत को पूरा करता है। स्वीडन में पेरेंट वर्कर्स को सबसे ज्यादा पेड लीव्स दी जाती हैं, जिसमें खवातीन को 68 वीक्स जबकि मर्दों को 18 वीक्स की छुट्टी दी जाती है। रहने के लिए स्विट्जरलैंड दुनिया का सबसे महंगा मुल्क माना जाता है, जहां हर महीने एक शख्स को कम से कम $3,500 के इक्विवेलेंट लोकल करेंसी चाहिए। सबसे ज्यादा बिजनेस ओनर्स की परसेंटेज युगांडा में मौजूद है, जहां 28% पॉपुलेशन जॉब के बजाय खुद का बिजनेस करती है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स दुनिया की वो वाहिद कंट्री है जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ टॉलरेंस यानी बर्दाश्त करने की मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ हैप्पीनेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी अलग मिनिस्ट्री है। यूनाइटेड किंगडम को यूरोप से कनेक्ट करने वाला चैनल टनल दुनिया का सबसे बड़ा टनल है, जो समंदर के नीचे से गुजर रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस की लिस्ट में पहला नंबर भी यूएसए के पास है, दूसरा भी और तीसरा भी। दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स वेनेजुएला के पास हैं और सबसे सस्ता फ्यूल भी यहीं पर मिलता है, सिर्फ 1 सेंट का 1 लीटर। और अब आखिर में दुनिया की सबसे लंबी नॉन स्टॉप केबल कार वियतनाम में मौजूद है, जिसकी लंबाई 5 किलोमीटर से भी ज्यादा है।